Welcome to all of you in this lecture of class 9th, chapter Force and Laws of Motion. In this lecture, we will solve some Ncert numericals, okay, based on Newton's second law of motion, that is force equal to mass into acceleration. We have derived this formula in the previous lecture. Newton discussed the application. We have already discussed the applications of Newton's second law of motion. Now we will solve some Ncert examples and the Ncert Intext numericals and exercise numericals, some exercise numericals based on Newton's second law of motion. Firstly, I will write here the numerical. I am writing here the numerical, then we will solve these numericals. Okay, so now this is the question. Question is that a constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. This is the first part. And now again, now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? Okay, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखिए, a constant force acts on an object of mass 5 kg, जो हमें given information है, that is mass m equal to 5 kg, okay, for a duration of 2 seconds, means time is given, time t equal to 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second, means initial velocity 3 meter per second and final velocity 7 meter per second. So u, initial velocity u is 3 meter per second and final velocity v is 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. First part is find the magnitude of the applied force. Okay, so we know force is equal to mass into acceleration by Newton's second law, and in place of first we will calculate the acceleration. So first acceleration is what? V minus u upon t, a equal to v minus u upon t, change in velocity per unit time, and acceleration will be from here in place of v 7 minus u 3 upon 2 time, that is 2, 7 minus 3 4, 4 upon 2 2. So acceleration will be here 2 meter per second square. This is our acceleration. Now we have to calculate the force. So force F equal to mass into acceleration. So put the value of mass m, that is 5 into 2, so F equal to 10. Okay, and unit of force is Newton, so answer force is equal to 10 Newton. This is the answer of first part. This is very easy Ncert example. Okay, and say in second part what is saying, now if the force was applied for a duration of 5 seconds. देखिए पहले जो फोर्स लग रहा था वो 2 सेकेंड तक लग रहा था. अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अगर फोर्स 5 सेकेंड तक लगता है, अगर यही फोर्स अगर हम 2 सेकेंड से 5 सेकेंड कर दें, एक नई कंडीशन बना दी, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो देखिए अगर फोर्स हमारा लगता है 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक अगर फोर्स लगेगा तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए फाइनल वेलोसिटी अगर हमें ऑब्जेक्ट की निकालनी है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा. सो फोर्स एफ, सेकेंड कंडीशन, force F equal to m into a. Okay, and you can calculate the new value of acceleration, because if the time force will change, okay, and time is also changing from here, and in place of a we can write m is same, in place of a acceleration we can write v minus u upon t. Okay, we can write v minus u upon t, and time is now changed. U is same 3 meter per second, but we have to calculate the final velocity. Okay, so for second part in place of F you can write 10 Newton, क्योंकि तो जो 10 न्यूटन पहले क्वेश्चन का आंसर आया, अब ये क्वेश्चन यही फोर्स सेकेंड वाले के लिए हमें गिवन हो जाएगा. ठीक, तो 10 न्यूटन इक्वल टू मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, दैट इज 5. वी हैव टू कैलकुलेट द V and minus u, u is 3 meter per second, 3 meter per second, v minus 3 upon time. Now we have no taken, time is now not 2 seconds, we have to take 5 seconds, t equal to 5 seconds, and we have to calculate the v.
okay, and force is 10 Newton in this case. So V minus 3 upon 5. So here no need to write the Newton, okay. So 5 and 5 will cancel out, so 10 equal to V minus 3, 10 equal to V minus 3, and minus 3 will come here, then it will become 10 plus 3 equal to V. So V equal to 13 मीटर पर सेकेंड. तो सेकेंड पार्ट को आप, ये आंसर हो जाएगा हमारा. तो सेकेंड पार्ट को एक बार और समझिए. देखिए पहले पार्ट में तो हमने अप्लाइड फोर्स निकाल लिया 10 न्यूटन. उसके बाद क्या कह रहा है, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, जो 10 न्यूटन का जो फोर्स निकला, अगर इसको 5 सेकेंड तक लगता है, बाकी कंडीशन सेम रहेंगी, बस टाइम चेंज कर दिया 5 सेकेंड तक, तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो पूछ रहा है. तो हमने भाई यही कंडीशन लगाई, F इक्वल टू एम इंटू ए की जगह पर हमने लिख दिया V माइनस यू अपॉन टी, और F यही फोर्स अब गिवन हो जाएगा 10 न्यूटन इक्वल टू 5, V कैलकुलेट करना है, माइनस यू ये पहले से 3 में है, अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, सॉल्व किया, सो V इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, देन वी विल सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स. क्लियरिटी? Okay, now next question is a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Okay, calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along the passengers is 1000 kg. Okay, so what is given here? Given is that a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour, means that is initial velocity. So initial velocity u is 108 km per hour. We have to convert first it from किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. हम इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए. सो u इक्वल टू 108 इंटू 5/18. सो इट विल कल 18 6 जा 108 118. सो u इक्वल टू 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड. From kilometer per hour we have converted it into meter per second. U equal to 30 meter per second, and it takes 4 seconds. So second information is time, that is 4 seconds. To stop, stop means final velocity v equal to 0. अगर ये stop हो जाएगा तो इसकी final velocity कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. And calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along the passengers is 1000 kg. यानी कि मोटर कार में कुछ लोग भी बैठे हुए हैं और वो पैसेंजर और मोटर कार दोनों को मिला करके मास कितना है 1000 kg. तो हमें ये भी दिया हुआ है मास इक्वल टू 1000 kg. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. So by Newton's second formula, the formula for force equal to Newton's second law of motion, F equal to m into a. So first we will calculate acceleration here. ओके, और देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ से, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. ओके, एंड a इक्वल टू इन प्लेस ऑफ v दैट इज 0 माइनस u माइनस 30 अपॉन टाइम t and that is 4. Okay, so a equal to minus 30 divide by 4. Okay, and we can say a equal to minus 15 by 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप इसको 2 से कट कर दीजिए ऊपर नीचे, 2 and 2 15 जा 30 minus 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज आवर एक्सेलरेशन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स. सो फॉर फोर्स F इक्वल टू m इंटू ए. पुट द वैल्यूज. मास कितना है हमारे पास 1000 kg, तो मास की ऊपर रख दीजिए 1000 इंटू एक्सेलरेशन की जगह पर रख दीजिए माइनस 15/2. तो देखिए ये कितना बन जाएगा, 2 से 1000 कट जाएगा, 500 टाइम्स 500 इंटू माइनस 15. तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 15 5 जा 75 विथ माइनस 7500 न्यूटन. दैट इज आंसर. ओके,
तो यहाँ पर जो माइनस साइन इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट ये करता है कि जो फोर्स और ऑब्जेक्ट का मोशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है। क्यों? ब्रेक्स लगाया जा रहा है, तो ब्रेक्स के द्वारा जो फोर्स है वो आपका डी एक्सेलरेशन को यहाँ पर दिखाता है कि ऑब्जेक्ट जो हो रहा है आपका रुक रहा है। अगर हमसे कहा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर कभी कहा जाए तो मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज नेग्लेक्टिंग माइनस साइन, हम केवल उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। और मैग्नीट्यूड को फिजिक्स में एफ के आगे ऐसे दो हमने लाइंस खींचे, इसको बोलते हैं मॉड। मॉड मीन्स मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम किसी के अगर ऐसे दो लाइंस ऐसे लगाते हैं, इसको मॉड पढ़ा जाता है, MOD। ओके, सो मॉड ऑफ एफ मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू -7500 न्यूटन। और किसी का भी जो मॉड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मॉड ऑफ एफ जो माइनस है, माइनस हटा दीजिए, 7500 न्यूटन। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 7500 न्यूटन. So this is the solution of this question. Okay, so you can take the screenshot for this one also, then we will solve some more numericals. Okay, now this is the next question. So the question, what is the question? Question is the velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given as follow. हमें क्या दिया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है किसी ऑब्जेक्ट के जिसका बॉल का जो कि मूव कर रही है एक लॉन्ग टेबल पर, और बॉल का मास क्या है? 20 ग्राम है. तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, और हमसे कहा गया है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट. यानी कि टेबल कितना फोर्स लगाएगी उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए. तो देखिएगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखिए, गिवन हमें जो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मास ऑफ बॉल दिया हुआ है. गिवन मास ऑफ बॉल m इक्वल टू 20 ग्राम. सो एट फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम. तो आप इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए. 20/1000 ओके kg. सो m विल बी इक्वल टू 0.02 kg. ये हमारा मास हो गया. ओके, 1000 से डिवाइड करके हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया. अब हमसे क्या कह रहे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज सोन एज हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल इट रेस्ट. बॉल मूव कर रही, तो टेबल कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी उस बॉल को रोकने के लिए, ब्रिंग इट टू रेस्ट. अगर रेस्ट कहा है तो इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0. फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज, हमें इस ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है ये देखिएगा. आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये टाइम है 0, यानी कि t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पर, t इक्वल टू 0 टाइम एक्सिस में, और आप देखिए कि y एक्सिस में वेलोसिटी है सेंटीमीटर पर सेकेंड में. तो t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना है? 20 पर हमें ग्राफ दिख रहा है. तो t इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस इज फ्रॉम ग्राफ. ओके, सो फ्रॉम ग्राफ t इक्वल इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रॉम सेंटीमीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड. तो सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 20/100. 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो अपॉन 100 कर दिया और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. सो u इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड. ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई. और दूसरा देखिए, फाइनल वेलोसिटी 0 एट t इक्वल टू 10 सेकेंड पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 10 पर जो वेलोसिटी है, देखिए t इक्वल टू 10 पर x एक्सिस में, y ये केवल x एक्सिस का पॉइंट है. अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं, दिस पॉइंट इज ओनली इन x एक्सिस, y कंपोनेंट इज 0. तो यहाँ पर t इक्वल टू 10 पर वेलोसिटी कितनी हो गई ऑब्जेक्ट की? फाइनल वेलोसिटी 0. ब्रिंग इट टू रेस्ट मीन्स v इक्वल टू 0, बट टाइम कितना लग रहा है उसको स्टॉप करने में? 10 सेकेंड. तो अब ग्राफ से देखिए, हमें एक और इंफॉर्मेशन है, t इक्वल टू 10 सेकेंड्स. ओके, t इक्वल टू जब 10 सेकेंड हो रहा है उस समय v इक्वल टू 0 मैंने यहाँ भी लिखा है, और यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ v इक्वल टू 0.
ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मास हमें मिल गया 0.02 kg, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी मिल गया है, टाइम मिल गया है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और t से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, a = v - u / t फॉर्मूले से। फिर फोर्स निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, सो दिस इज, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन एंड आई एम सॉल्विंग द रेस्ट पोर्शन हियर। ओके, सो प्लीज रेस्ट पोर्शन में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, m × a है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, v - u / t फॉर्मूले से। तो देखिए a = v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 0, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, 0.2, 0.2 अपॉन t, t इज दैट इज 10। ओके, सो 0 - 0.2 -0.2 बनेगा, माइनस 0.2 अपॉन 10, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। सो फॉर फोर्स F = m × a, so F = mass, put the value of mass 0.02, 0.02, this is mass kg, and acceleration is also -0.02, 0.02 मल्टीप्लाइड बाई -0.02। ओके, मैं देख रहा हूं कि आपको विजिबल है या नहीं है स्क्रीन पर, -0.02। ओके, इट इज विजिबल। सो आप इनको आपस में इंटू कर दीजिए, 0.02 को -0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -0.0004 और इतना न्यूटन। सो दिस इज योर आंसर, F is equal to -0.0030, then 4 Newton. Okay, so what is the minus sign indicates here? Minus sign indicates that the value of force opposes the motion of the ball, means this is the frictional force offered by the table. Okay, so in this way you can take the screenshot of this question and you can solve some more questions also. Okay, so please take the screenshot. Okay, so I have written here the next question. So next question is, a force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स एक 5 न्यूटन का फोर्स किसी एक m1 मास के ऑब्जेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, एंड अ मास m2 और किसी दूसरे मास m2 में एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीन्स कोई एक 5 न्यूटन फोर्स हमने लगाया तो वो एक m1 मास पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है और m2 मास पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है। ओके, सो व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव, ये कितना एक्सेलरेशन देगा यही 5 न्यूटन का फोर्स इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर, अगर दोनों मासेस को, दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ टाइट कर दिया जाए, यानी कि एक साथ बांध दिया जाए या एक साथ कांटेक्ट में रख दिया जाए, उसके बाद वही फोर्स दोनों पर कितना एक्सेलरेशन देगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए फोर्स, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, फोर्स F = 5 न्यूटन है, मास m1, एक्सेलरेशन m1 मास पर जो एक्सेलरेशन है मान लीजिए a1 है, एक्सेलरेशन ऑन ऑफ m1 दैट इज a1 = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऐसे ही जो m2 मास पर जो एक्सेलरेशन है a2 मान लीजिए दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो पहले हमें दोनों ऑब्जेक्ट के मास चाहिए, पहले हम दोनों का मास निकालेंगे, नेट मास, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो अगर कोई 5 न्यूटन का फोर्स, एक जनरल चीज है, 5 न्यूटन का फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट पर m1 मास पर 10 का ही एक्सेलरेशन दे पा रहा है और वही फोर्स m2 मास पर 20 का दे रहा है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर होगा, कौन हल्का होगा? जिस पे एक्सेलरेशन 20 है, यानी कि m2 मास वाला हल्का होगा, तभी तो उस पर ज्यादा एक्सेलरेशन है। तो देखिए पहले हम दोनों ऑब्जेक्ट का मास निकालते हैं, ठीक। सो फॉर्मूला F = m1 × a1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ओके, फॉर मास m1 के लिए वी कैन राइट फॉर ऑब्जेक्ट और वी कैन से फॉर डायरेक्टली मास m1, फॉर मास m1 मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनेगा, फोर्स F = क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से m × a, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये बन जाएगा m1 × a1। तो हमें F पता है और a1 पता है, तो हम इसका मास निकाल लेंगे। तो यहाँ से F कितना है, 10
F equal to 5 और वी कैन से मास m1 इक्वल टू फॉर्मूला a1 को नीचे ले आइए F अपॉन a1. सो m1 विल बी इक्वल टू 5 अपॉन एक्सेलरेशन 10 दैट इज इक्वल टू m1 इक्वल टू 1/2 1/2 दैट इज 0.5 kg. तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है 0.5 kg है. ऐसे दूसरे ऑब्जेक्ट का मास निकाल लेते हैं. सो फॉर मास m2 मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, फोर्स F इक्वल टू m2 इंटू a2 एंड फ्रॉम हियर m2 विल बी इक्वल टू F अपॉन a2 एंड m2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ फोर्स F इज हियर 5 अपॉन a2 इज हियर 20. ओके, सो m2 विल बी इक्वल टू 1/4. okay, 5 1 ja 5, 5 4 ja 20, 1/4. now divide this one, so this will become 0.4, it will become 10, 4 2 ja 8 and then 20 to 5. okay, 0.2 1/4 0.25, so that is 0.25 kg. मीन्स हमने दोनों ऑब्जेक्ट का मास अब निकाल लिया. पहला m1 मास आया 0.5 kg और m2 आया 0.25 kg. लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिए हमसे पूछा है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव. मीन्स ये फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स कितना एक्सेलरेशन देगा इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर. तो हम नेट मास निकाल लेते हैं. नेट मास क्या हो जाएगा अगर टाइड टुगेदर, तो m1 प्लस m2, देन वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. ओके, इफ both the masses tied together, then net mass or we can say total mass m equal to m1 plus m2. add these two masses, so m equal to 0.5 plus 0.25, so this will become 0.75 kg. so this will be our net mass or total mass if they are tied together. now we have to calculate net acceleration and net force is given same, F equal to 5 Newton here. so what will be the net acceleration, we can calculate easily. force F equal to m into a, acceleration a equal to F upon m. okay, so put the values here. so a equal to, in place of force that is 5 and in place of acceleration mass 0.75. okay, now we can solve this one. We can write it as a equal to 500 upon 75. to remove the point हटाने के लिए मैंने ऊपर भी 100 से इंटू कर दिया, नीचे भी 100 से इंटू कर दिया 75. अब आप इसको 25 से कट कर लीजिए, तो a इक्वल टू नीचे आ जाएगा आपका 3 और 25 से ऊपर अगर आप कट करेंगे तो 25 2 जा 50 20, तो a इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 20 अपॉन 3 बन जाएगा. और 20 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका बन जाएगा कितना 3 6 जा 18.66 बार, 6.66 बार चलेगा. या हम इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी अवर at last, this is I am showing you 6.67 meter per second square. okay, so this will be the net acceleration if both the masses were tied together. okay, so you can take the screenshot for this one. so in this way we can solve the numericals on the basis of Newton's second law of motion, force equal to m into a. ओके, आगे भी हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे. ये जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हुए हैं इस लेक्चर में, एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी से, तो आप इनका सॉल्यूशन देखिएगा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिएगा लगातार ऐसी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच.